Hello, friends. Welcome to Classes by Vijata. And our today's topic is retail store operations. These are the functions which are involved while operating a retail store. So let's see what is retail store operations. Retail store operation includes all the activities that are needed to ensure the smooth flow of store activities. Once you are having one store, you have opened a store, you want to run your store properly, you want a store to run profitably, then you must ensure that all the tasks that has to be performed in a particular store has been distributed, had been to delegated to all the staffs in order to get the work done properly, on time, and in the best way out. So when you are doing a retail store operation, it is very necessary to make a operational manual or a blueprint of what task has to be performed by whom. That is the basic thing which is to be done in retail store operation. So retail store operations basically signifies the operational manual or a blueprint which is done in a retail store in order to identify the task, and the task being assigned to that particular person who will be doing this task. So whenever you are doing a retail store operation, you need to take care of these following activities: store administration, management of retail floor, inventory management, managing receipts, customer service, and sales promotion. These are the five things, five brackets, you can say, where you need to prepare your task sheet. You need to prepare a to-do list, and then you need to divide it. You need to delegate it to your staff in order to get your work done properly. So जब आप रिटेल स्टोर ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है, मे इट बी फूड और नॉन फूड, किसी भी तरह की कैटेगरी हो, आपका रिटेल स्टोर हो, वहां पे ये 5 चीजें तो करनी ही पड़ेंगी आपको, ताकि आप अपना रिटेल स्टोर प्रॉपर्ली रन कर सके। तो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फ्लोर करना होगा, पहली एक्टिविटी। इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी होगी, मैनेजिंग रिसीट मतलब आपको सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारा। उसके बाद कस्टमर सर्विस के ऊपर ध्यान रखना है, एंड सेल्स प्रमोशन। तो लेट्स सी कि ये सारी चीजें क्या क्या कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अगर आप ये डायग्राम अगर देख सकते हैं, सब फिगर विच इज द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट द स्टोर लेवल, उसका एक डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, जहां पे आप एक साइड में देख सकते हो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेमाइसेस, और दूसरी साइड में है मैनेजिंग योर सेल्स और अलायंसेस या फिर सेल्स प्रमोशन का ध्यान रखना। तो ये दोनों के बीच में आपको ये 3 एक्टिविटी रेगुलर करनी होगी। वो होगा रिसीविंग एंड डिस्प्लेइंग गुड्स, मतलब आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमने लिखा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देना है, प्रोवाइडिंग अ कस्टमर अ बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो कि हम कस्टमर सर्विस की बात कर रहे थे, एंड रिकॉर्डिंग योर सेल्स का मतलब मैनेजिंग रिसीट्स। तो ये एक्टिविटी इन बिटवीन स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स प्रमोशन, ये उसके साथ साथ चलती रहती हैं ये सारी एक्टिविटी। तो हम लोग एक एक करके सारी एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं। So what is store administration? First thing, store administration deals with various aspects which are necessary to sell to a good client without any disruption. किसी भी तरह के परेशानी के बिना आप अपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, अपने एक अच्छा क्लाइंट है, उसको आप कैसे कोई सेल्स कर सकते हैं, वो जो भी सामान लेने आए हैं उसको वो सामान मिल जाए बिना किसी डिसरप्शन के, तो उसी को हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज का हमें ध्यान रखना है। पहला तो क्या होता है, क्लीनलीनेस का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टोर जो पूरा स्टोर है उसका फ्लोर हो, चाहे वो फसाड हो, चाहे डिस्प्ले विंडोज हो, everything should be clean. Second, you maintain a record of each and every employee, using them efficiently, prudently to keep records of holidays, shift, and staff may be required to work for the staff pending leave record and other things. So you need to do your human resource management properly. Third thing is you need to arrange your store, like you need to focus on the visual merchandising as well as inventory management. Visual merchandising is basically how we store our things in such a way that they look attractive to a customer and they tend to buy the product.
एंड दैट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग। बेसिकली विजुअली अपीलिंग कैसे आप प्रोडक्ट्स को रखते हैं ताकि आपका रिटेलर जो खरीदने आया है उसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा खरीद के जा सके, दैट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग। एंड जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यू शुड हैव राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। So arranging and refilling merchandise before the customer comes to the shop has to be taken care in store administration. The customer आ जाए उससे पहले ही रखा हो, उसके बाद आने से रखने से आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है। Ensuring that all the requirement like permissions, licenses, NOCs वगैरह ये सारा कुछ आपने ले रखा हो ताकि आप अपने स्टोर को बहुत अच्छा रन कर सके। जैसे आपने बहुत बार रेस्टोरेंट्स का सुना होगा, बहुत बार होता है कि फसाई का लाइसेंस नहीं है, या अगर किसी ने अपना लॉन्ज खोला है या बार खोला है तो बार लाइसेंस नहीं है, उसकी वजह से वो बंद हो जाता है। कई बार वाटर के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है वाटर एक्ट के अंडर में। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइसेंसेस का ध्यान रखना है। वंस यू आर इनटू रिटेल स्टोर, वंस यू आर इनटू द रिटेल बिजनेस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द लाइसेंसेस, म्युनिसिपैलिटी, होल्डिंग, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वहीं पे अगर आप मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फ्लोर की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फ्लोर बेसिकली बिगिंस टू डिटरमाइन व्हाट टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड एंड हु विल परफॉर्म दीज टास्क। मतलब काम क्या है और कौन करेगा, यही है मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फ्लोर या मैनेजमेंट ऑफ रिटेल प्रमाइसेस। यहाँ पे 3 तरह से काम को डिवाइड किया जाता है। पहला, दुकान खुलने से पहले, मतलब प्री स्टोर ओपनिंग एक्टिविटीज। फिर बीच में जब तक दुकान खुली हुई है आपकी, ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स एक्टिविटीज, एंड फिर दुकान बंद करना भी इज अ टफ टास्क। जब आप एक रिटेल स्टोर को अगर आप देखेंगे जिसने अपनी छोटी सी दुकान के आगे पेप्सी का फ्रिज लगा दिया, उसके बाद लेस का रैक लगा दिया है, उसके आगे कैरेट रख रखे हैं बहुत सारे, आगे कुछ और प्लेटफॉर्म डाल करके कुछ चीजें डिस्प्ले पे रखी हैं, वही सारी चीजों को वापस भी रखना होता है उसे, और तभी जा करके वो दुकान आगे बंद करके फिर जा सकता है। तो पोस्ट स्टोर क्लोज एक्टिविटीज, ये तीनों का ध्यान रखता है। तो लेट्स सी ये प्री स्टोर में, पोस्ट स्टोर में और ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स हम क्या क्या करते हैं। तो प्री स्टोर ओपनिंग एक्टिविटीज में यू नीड टू टेक केयर ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर एरिया, इन्वेंट्री प्रॉपर्ली जितनी आज बिकनी है वो आ गई है या नहीं आ गई, मेंटेनिंग द इन्वेंट्री रिकॉर्ड, अरेंजिंग इन्वेंट्री फॉर डिस्प्ले, चेकिंग वेदर all cells rack are refilled properly, to check all the electric equipments, bulb tubes, ये सब कुछ प्रॉपर, मतलब लाइटिंग करेक्ट है कि नहीं, डिसाइड द ड्यूटी चार्ट, टू चेक वेरियस वेट मेजरिंग मशीन्स, मशीन्स आपकी प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स केप्ट फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जो चीजें रखी हैं उसका प्राइस भी आपको लगा के रखना पड़ता है, तो वो प्रॉपरली अपने प्राइस जो करेक्ट प्राइस है वो लगाई है नहीं, टू चेक एंड रिफिल पॉलीबैग्स, गिफ्ट रैपर्स, लूज कॉइन्स एट द बिलिंग काउंटर, बिलिंग कैश काउंटर के पास अपने, मतलब कुछ खुले रख दिए, कुछ आपने रैपर्स रख दिए, लूज कॉइन्स, पॉली बैग्स, जो भी जरूरत होगी वो सारी चीजें आपने रखी या नहीं रखी, टर्निंग ऑफ द अलार्म, ड्यूरिंग टर्निंग ऑन द पावर एंड सेटिंग द कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ये सबको आपने ऑन करा या नहीं करा, ये सब आप मैनेजिंग प्रमाइसेस के अंडर में आता है। आप फर्स्ट थिंग जो आपने दुकान खोलने से पहले, अपनी ट्रेड, अपनी जो रिटेल स्टोर है उसको खोलने से पहले करना है। उसके बाद जब आपका, जब ट्रेडिंग आवर है, जब लोग आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, तब क्या करोगे, तो उस समय ग्रीटिंग द कस्टमर्स, टू हेल्प द कस्टमर वेन एवर एंड वेर एवर इज नीडेड, सिक्योरिटी स्टाफ आपका प्रॉपरली लगा हो, लगेज वगैरह कोई सामान लेके आ रहा है तो उसको काउंटर पे रखवाना, ये सारी चीजें, टोकन वगैरह देने का, फ्लोर भी क्लीन होता रहे बाकायदा, retailer supervises the activity of store employees and shoppers by the way of anti theft device और सीसीटीवी, ये सब भी आपका प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, सीसीटीवी या किसी भी तरह की शॉपलिफ्टिंग तो नहीं हो रही, उसका आप ध्यान रखिए। कैशियर्स कीप द रिकॉर्ड ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड एक्सेप्ट द पेमेंट, आपने जो सामान बेचा उसका प्रॉपरली पेमेंट ले लेना है, ये नहीं कि फ्री में किसी को सामान दे देना है। एंड फ्लोर स्टाफ इन्फॉर्म द इन्वेंट्री मैनेजर रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड, दैट शेल्फ शुड बी रीफिल्ड बिफोर द स्टॉक एंड। तो जब तक स्टॉक एंड, मतलब ये नहीं कि स्टोर पूरा खाली हो जाए, वैसा नहीं, वो उसको फिर वापस से रीफिल कर देना, वो भी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स का काम है। पोस्ट, जब आप दुकान, आपकी पोस्ट बंद हो गई तो उस समय क्या है, मतलब आप कस्टमर्स को नहीं आना है, ये नहीं कि आपने बंद कर दिया, कस्टमर्स को अब नहीं आना है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड मर्चेंडाइज रिकॉर्ड,
फिर स्टोर मैनेजर कितना दिन भर में क्या बिक्री हुआ, क्या हुआ, उसका आप रिकॉर्ड रखेंगे। जितना कैश है, क्रेडिट है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, मिलाया जाएगा। इन्वेंट्री स्टोर सबमिट्स द मर्चेंडाइज बैलेंस रिपोर्ट टू द मैनेजर। Security staff inspects the store floor staff and reports to the staff managers. जितने भी जगह है, मतलब सिक्योरिटी स्टाफ होगा आपका, घूम के वो देख लेगा कि क्या चीजें ठीक है, क्या चीजें नहीं है, वो सबको देख लेना। Janitorial staff make sure that all the electric, water and other security instruments are properly switched off. Supervisory staff ensures that all the windows, display cells are pre-covered and safe from insects, weather, hazardous कंडीशन, पिल्फरेज, इन सब से सब कुछ प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे। और उसको, जैसे कहते हैं ना, दुकान में सारी चीजें जब बाहर निकली थी, अब उसको प्रॉपरली अरेंज करके रख देना। एंड टर्निंग ऑन द अलार्म, अब उसको एंटी थेफ्ट अलार्म को ऑन कर देना है कि रात में अगर कोई आया, किसी भी तरह का कोई एंटी सोशल एक्टिविटी अगर हो रही है, तो उस समय अलार्म आपका बज जाए, जिससे कि आप अपने स्टोर को बचा सके। लॉक अप द डिस्प्ले आइटम्स इन आउटसाइड द स्टोर एरिया। जो भी कोई चीजें अगर बाहर है तो उन सबको फिर अंदर रख के प्रॉपरली दुकान को बंद कर देना। तो दैट इज पोस्ट स्टोर एक्टिविटीज। जो जब आप रिटेल स्टोर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 3 चीजें आती हैं। उसके बाद हमने बात करी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो स्टोर में सामान है वो इतना होना चाहिए कि आपके पास जो कस्टमर्स आए उनको जो चीज चाहिए वो मिल जाए। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो रखा रह जाए और रखा रखा खराब हो जाए। मतलब राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस, ये अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है। तो sound system of inventory management enables an organization to meet or exceed customer expectation of goods availability while maximizing net profit and minimizing the net cost. तो इससे क्या होता है कि आपके पास अगर प्रॉपर इन्वेंट्री है तो आप अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि पीक आवर पे अगर आप कोई सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी वो कॉस्टली मिलेगा, लेकिन यही चीज आपने प्रॉपरली प्लानिंग करके अगर उसको पहले से खरीद लिया तो अपना कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने फोरकास्टिंग करके एक बार में मंगाई तो अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो सबको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कराना, दैट इज द बेसिक मोटिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप जब कर रहे होते हैं तो एज अ रिटेलर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेसिकली यू डिसाइड व्हाट आर द ब्रांड, साइजेस, मटेरियल, कलर, स्टाइल, प्राइस पॉइंट, ये सारी चीजों का डिसाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट के लिए फोरकास्ट करके और फिर उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये सारी चीजें आपको बाइंग मर्चेंडाइज में भी आपको पता है। जब आप एज अ रिटेलर आप बाय करते हैं तो आप बाइंग फंक्शन में भी ये चीजें पड़ी होंगी आपने। तो इट इन्वॉल्व्स रेगुलर चेक एंड एडजस्टिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन दैट आर एडेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द मर्चेंडाइज मिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम पे जो भी आपका मर्चेंडाइज मिक्स में कोई चेंज आता है, जैसे कि अभी सर्दियां आ गई तो सर्दियों में हमको वुलन क्लोथ ज्यादा, अगर मान लीजिए आप गारमेंट स्टोर है तो आपको वुलन और ठंड से बचाने वाली चीजें आपको ज्यादा लानी पड़ेगी। वहीं अगर गर्मी आ गई तो आपको पूरा का पूरा गारमेंट को कॉटन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका किस तरह का स्टोर में किस तरह का प्रोडक्ट लाइन ज्यादा चलता है, क्या चीज लाना है, क्या चीज घटाना है, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में there are two styles of or approaches of doing inventory management. First is inventory turnover, दूसरा होता है open to buy। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस जैसी आपकी कोई स्टोर है, रिलायंस ट्रेंड। तो रिलायंस ट्रेंड जैसी स्टोर है, मतलब वहां पे क्या है, आपको गारमेंट सेल करने। तो गारमेंट सेल करना तो वहां पे फीमेल भी है, वहां पे मेल भी है, वहां पे किड्स सेक्शन भी है। तो फीमेल में भी आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से ब्रांड रहेंगे आपके पास, कौन सा मटेरियल आप ज्यादा सेल करेंगे, कौन सा कलर आपका ज्यादा बिकता है। आप अगर रिलायंस स्टोर में जाएंगे तो आप ज्यादा देखेंगे कि ज्यादातर पिंक और लाइट ब्लू या फिर टर्कोइज कलर, ये सारे चीज ये ज्यादा बिकता है वहां पे। तो आप कलर वेरिएंट भी देखेंगे कि ज्यादातर उस तरह के कलर, येलो ज्यादातर रहेंगे। तो कलर कौन सा ज्यादा बिकता है, कौन सा स्टाइल ज्यादा पॉपुलर है, कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा रिलायंस स्टोर पे ही मिलेंगी। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टाइल है जो वहां पे बहुत ज्यादा उनको लगता है कि बिकता है, उसके हिसाब से वो रखते हैं। तो आप जब भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो या तो आप इन्वेंट्री के टर्नओवर के हिसाब से, इन्वेंट्री का टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि सेल्स बाय इन्वेंट्री, आपका कितना सेल्स हो रहा है और आपके इन्वेंट्री में क्या चीजें थे, दोनों का रेशियो आप निकालते हैं और उसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर के हिसाब से अगर आप चाहें तो उसके हिसाब से भी आप अपना ऑर्डर फोरकास्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या तो आप ओपन टू बाय में जा सकते हो। ओपन टू बाय में क्या होता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि कितना, जब आप ओपन टू बाय में जाते हैं तो बेसिकली जो फास्ट सेलिंग आइटम्स होते हैं उसको आप बहुत जल्दी आप रीस्टॉक कर सकते हैं। जो स्लो होते हैं उनके लिए आप थोड़ा लंबा टाइम लगाते हैं रीस्टॉकिंग करने के लिए। तो ओपन टू बाय अप्रोच कैन बी कैलकुलेटेड इन ईदर यूनिट्स और रुपी टर्म्स, and it is defined as the difference between how much inventory is required and how much is actually present, including inventory in hand and in transit and on outstanding orders। जितने भी हमारे पास जो पहले से प्रेजेंट है इन्वेंट्री, हम उसका भी हिसाब रखेंगे, ट्रांजिट में कितना है और कितने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसका ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से हम ओपन टू बाय स्ट्रैटेजी में जाते हैं, या इन्वेंट्री में हम सेल्स बाय इन्वेंट्री के ये रेशियो के हिसाब से जाते हैं। अगर आपका लो इन्वेंट्री टर्नओवर है तो इसका मतलब ये है कि आपका सेल्स कम हो रहा है और आपका इन्वेंट्री बढ़ गया है, तभी आपका लो होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि आपका लो इन्वेंट्री है, मतलब आप चीजों को आपने बहुत ओवर स्टॉक कर लिए और बहुत ऑब्सलीट हो रही हैं चीजें। और अगर वही चीज अगर आपका हाई टर्नओवर हो जाए, तो हाई टर्नओवर में क्या होता है, मतलब उस केस में क्या हो रहा है कि आपका सेल्स बहुत हो रहा है, आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपका इनएडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल्स को इंडिकेट करता है। अगर आप हाई टर्नओवर पे चले जाते हो तो यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन्वेंट्री टर्नओवर के केस में। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीट। मैनेजमेंट ऑफ रिसीट का मतलब होता है कि आपने जो भी सेल्स किया उसका रिकॉर्ड आप कैसे रखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीट इन्वॉल्व्स द पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस रिटेलर फॉलो टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। जो भी कस्टमर से आपने पेमेंट लिया है उसका हिसाब कैसे रख रहे हैं, कैसे उसको, उसकी पॉलिसी क्या है, क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं, वही मैनेजमेंट ऑफ रिसीट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वी टेक केयर ऑफ विच मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी यूज्ड, who is responsible for administrating credit cards, what is the policy for non-payment or late payment। फिर कस्टमर की एलिजिबिलिटी आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, अगर आप किसी का क्रेडिट कार्ड या किसी का चेक यूज कर रहे हैं या फिर बैंक चेक्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ ज्वेलरी स्टोर या फिर हाई प्राइस प्रोडक्ट्स में। फिर व्हाट आर द क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन, उधार आप किस टर्म्स पे देते हैं, किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, अगर आप देते हैं उसमें क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एंड व्हेन द इंटरेस्ट चार्ज विल बिगिन एंड व्हाट विल बी द मिनिमम मंथली पेमेंट। ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ रिसीट में आता है। मतलब पैसे लेने का क्या तरीका है आपके पास और पैसे को रखने का उसके हिसाब किताब का आपका क्या तरीका है, दैट इज मैनेजमेंट रिसीट। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज कस्टमर सर्विस, जो कि स्टोर ऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्टोर में आप कस्टमर सर्विस के थ्रू यू कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे आप कहते हैं ना, हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी साड़ी स्टोर में चले गए और वहां पे आपने 10,000 की साड़ी खरीदी, 20,000 की साड़ी खरीदी, आपको उसका दाम याद नहीं रहेगा, लेकिन रिटेलर ने आपको एक कप चाय पिलाई थी ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। तो कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज होती है जहां पे जो कस्टमर को जीत लेती है, मतलब आपके लिए वो लॉयल बना देती है। इसके लिए वो क्या होता है ना कि उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती, छोटी छोटी चीजें और उससे आपका कस्टमर आपका हो सकता है। जैसे कि ऑफरिंग्स आप कुछ रख ले, कस्टमर लॉयल्टी के लिए कुछ आप करें, छोटे छोटे पॉइंट्स रखते हैं आप अपने रिटेलर अपने कस्टमर्स के लिए, तो उस केस में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है ओवर योर कॉम्पिटिटर, जो कि बहुत इजीली उसको रेप्लिकेट कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। So it is very important to customers, but difficult for competitors to duplicate, keep customer returning to a retailer, and generate positive word of mouth communication which attracts new customers। तो क्या होता है ना कि अगर आपका कस्टमर लॉयल है तो बार बार आपके पास आता रहेगा, उससे आप बहुत अच्छा उसकी कहते हैं सीएलवी बहुत हाई हो जाती है, कस्टमर लाइफ वैल्यू उसकी बहुत बढ़ जाती है। बहुत बार उससे हमको एक ही कस्टमर से हम बहुत बार बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और कस्टमर सर्विस को के लिए बेसिकली जो आपको करना है वो होता है कि आपके स्टाफ को, आपके इम्प्लॉयज को ट्रेन करना होता है। बिकॉज कस्टमर किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर वो बहुत मृदुभाषी हो गए, वो बहुत अच्छे से कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा कम ज्यादा भी होगा ना, तो भी आपके कस्टमर्स आपके साथ
वो बार बार आपके स्टोर पे आएंगे। लेकिन आप बहुत अच्छी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है वो बहुत रूड है, तो कस्टमर विल नेवर टर्न टू योर स्टोर अगेन। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है एक रिटेल स्टोर में। उसके बाद द लास्ट थिंग इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन रिटेल में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, जो कि एक पेड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है, जो कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू या इंसेंटिव देती है कस्टमर को इन ऑर्डर टू मेक देम विजिट टू द स्टोर और परचेज मर्चेंडाइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किसी कस्टमर को अगर हम किसी भी तरह का प्रलोभन देते हैं, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वैल्यू, किसी भी तरह का इंसेंटिव दे रहे हैं, जस्ट टू इन ऑर्डर टू मेक देम विजिट द स्टोर और टू परचेज द मर्चेंडाइज, तो उसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। उसके लिए कस्टमर्स के आपके पास आए, जल्दी से वो कुछ सामान खरीदे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू देना होगा, कुछ इंसेंटिव देना होगा। तो वो इंसेंटिव्स किधर से आएंगे या कैसे आएंगे, उसके लिए आपको सेल्स प्रमोशन में प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप टाई अप्स कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं लोकल डीलर्स के साथ, आप प्रोडक्ट डेमो भी रख सकते हैं, आप फ्री सैम्पलिंग कर सकते हैं, आप सेल लगा सकते हैं ना, 60% ऑफ, 60+50% ऑफ, ऐसे करके आपने देखा होगा। कूपन्स देते हैं, लॉयल्टी कार्ड देते हैं, देयर आर सेवरल वेज जैसे कि आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। तो रिटेल स्टोर में सबसे ज्यादा सेल्स प्रमोशन फॉलो किया जाता है, मे इट बी एट रिटेलर लेवल, मे इट बी ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर, वहां से भी ये चल के आ सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स, सॉरी, इज पार्ट ऑफ रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। थैंक यू वेरी मच।